हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे। और आज हम थोड़ा नंबर सिस्टम में थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। तो हमने बताया था बाइनरी का बेस 2 होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है, हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है और डेसिमल का बेस 10 होता है। ठीक है ना। इसका पहला नंबर जो होता है वो होता है 0 और लास्ट नंबर होता है 1। इसका पहला नंबर होता है 0 और लास्ट नंबर होता है आपका 7। इसका पहला नंबर होता है 0 और उसका लास्ट नंबर होता है 15। बट 15 को हम 15 न लिख के, क्योंकि 15 को 15 भी पढ़ा जा सकता है, हम एक सेपरेट डिफरेंट सिंबल देते हैं, उसका नाम है F। ओके। And the last number system is the decimal number system. In decimal number system, first number is 0 and last number is 9. So whatever the base of any particular number system, the first number is starting from 0 and the last number is base minus 1. So here see the actual number system, the first number is 0 and the last number is base minus 1, means 8 minus 1, it is 7. In a similar way, hexadecimal number, first number is 0 and last number is 15, and decimal number system, first number is 0 and last number is 9. Okay. So in previous video class we will discuss about the conversion decimal number into binary number system. Okay. then हम आज फिर पढ़ेंगे कि डेसिमल को बाइनरी में एक बार फिर से एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे 1792 है, तो 1792 को हमको किस में चेंज करना है? बाइनरी में चेंज करना है। ये कौन सा नंबर है? डेसिमल में है। तो जिस भी नंबर सिस्टम में चेंज करना होता है उससे डिवाइड करते हैं। जैसे अगर डेसिमल से बाइनरी में चेंज करना होता है तो 2 से डिवाइड करेंगे। जब डेसिमल से ऑक्टल में पूछेगा तो 8 से डिवाइड करेंगे। डेसिमल से हेक्साडेसिमल में पूछता है तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 16 से डिवाइड करेंगे। वेरी गुड। So 192 7. So here again we select the drawing. Okay, then 1792 is divided by what? Is divided by 2. So it is even number, so definitely the remainder is 0 and the quotient is, so quotient is when you divide it is around half, so it is 896. Okay, so 896 is the quotient. Then again when you divide by 2, so it is a even number, you will get the remainder 0 and the quotient is what? 448. So it is again even number, so when you divide by 2 it is again 0 and you will get 224. You again divided by 2 and you will get remainder 0. In the same way pattern up to 7 number quotient, so up to when you get the 7 quotient, so 7 is the odd number, 7 is an odd number and you will get the remainder there 1, and again you will find it is the remainder, if quotient is 3 then remainder is 1, then it is quotient is 1, the remainder is 1. So for 7 remainder is 0 and for 3 remainder is 1 and for 1 remainder is 1. Okay, so we will start reading from 110 000 and 00. So what is the binary number of 1792? So it is 1 1 1 0 0 0, then again 5 times 0, then 0, then 0, then 0, then 0 and then 0. Okay, any problem? So it is a very big number, so in examination I don't think they will ask you such a big number to convert the in a binary number. They will maximum give you convert the 3-digit number. Okay, so 3-digit number or 2-digit number, so you have to prepare up to 3-digit, maximum 4-digit. Okay, don't go to prepare for 5-digit, 6-digit, 7-digit. Okay, so next is how to convert decimal number system into a octal number system. So again I am telling you, whenever you divide
when you convert decimal from any number system, you have to divide by 8, base, you have to divide by base. So here see that the same number 1792. So whenever you change it in a decimal to octal number system, this octal number base is what? Octal number is base is 8. Okay, so you have to divide by what? 8. You have to divide by 8. Here you write the quotient and here you write the remainder. Here you write the quotient, here you write the remainder. Okay, so here again you see that 1, 7, 9 and 2, when you divide by 8, so remainder is 0 and the quotient is 2, 2, 4. मुझे नहीं लगता कि 11th स्टैंडर्ड साइंस में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए किसी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होगी कि हम अगर 1792 को 8 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्यों 0 आएगा और क्वोशिएंट क्यों 224 आएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये आपको बताने की ज़रूरत है। फिर हम 8 से फिर अगेन डिवाइड इसको करेंगे तो अगेन जो रिमाइंडर है आपका वो 0 आएगा और जो क्वोशिएंट आएगा वो आपका 28 आएगा। ठीक है, ठीक है, आप इसको 8 को 28 से मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो इट बिकम 224। ओके, अगेन 28 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 × 24, तो क्वोशिएंट इज 3 और 24 को हम जब 28 से डिवाइड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। ठीक है ना, तो हम इसको फिर नीचे से ऊपर की साइड में पढ़ेंगे तो 3400। सो योर आंसर इज़ 1792। अगर ये डेसिमल में है तो इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल आएगा आपका 3400 और हम आंसर इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, आंसर जब भी लिखेंगे तो यहाँ ब्रैकेट लगा के लास्ट में यहाँ पे बेस लिखना नहीं भूलेंगे। ठीक है ना, इससे ये पता चलेगा ये नंबर सिस्टम जो है हमारा डेसिमल में है और ये नंबर सिस्टम हमारा डेसिमल में ना होके ये नंबर सिस्टम ऑक्टल में है। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट इज कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। So whenever you convert decimal number system to hexadecimal number system, you have to divide it by what? You have to divide by 16. You have to divide by 16. और जब किसी नंबर को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 से लेके आपका रिमाइंडर 15 तक आएगा। जब हम किसी नंबर को 16 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 से लेके 15 तक आएगा। अगर 9 तक रिमाइंडर आता है तो हम 9 को 9 लिखेंगे, लेकिन अगर 10 रिमाइंडर आता है तो उसको A लिखेंगे। अगर 11 रिमाइंडर आता है तो हम उसको B लिखेंगे। उसी तरह अगर लास्ट में 15 रिमाइंडर आता है तो हम उसको F लिखेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 1792 है, उसको हम 16 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 112 आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। आप देखिए, आप 112 को आप 16 से मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो 1792 आएगा। ठीक है ना, फिर 122 को हम फिर 16 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 7 आएगा और ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा और रिमाइंडर आपका 0 आएगा। ठीक है, और जब हम 7 को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 0 आएगा और रिमाइंडर 7 आएगा। इसमें किसी को प्रॉब्लम आ सकती है कि जब हम 7 को 16 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्यों 7 आ रहा है। देखिए, 16 को जब हम 7 को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो कुछ जो 0 टाइम जाएगा, 0 टाइम, तो जब 0 टाइम जाएगा तो 0 में हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आएगा। अब हम 7 से 0 को घटाएंगे तो वो 7 आएगा। समझ रहे हैं? मीन्स कि रिमाइंडर यहाँ पे 7 आ रहा है और क्वोशिएंट यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक, तो हम इसको फिर अगेन अपोजिट साइड से पढ़ेंगे 700 और हम इसको यहाँ पे ऐसे लास्ट में 16 लिख देंगे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है किसी को कोई दिक्कत होगी इसमें। ठीक, अब डेसिमल नंबर सिस्टम, ये जो आपका है एग्जांपल है, आप इसको करके देखिएगा। 48879 को आप डिवाइड करके देखिएगा, वो रिमाइंडर क्या आएगा आपका
BEEF आएगा। चलिए हम एक बार इसको भी देख लेते हैं। जैसे 4, 8, 8, 7, 9 को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशिएंट आएगा वो आपका 3045 आएगा और रिमाइंडर 15 आएगा। जब रिमाइंडर 15 आएगा तो हम उसको क्या लिखेंगे, F लिखेंगे, ठीक। फिर हम क्वोशिएंट को डिवाइड करेंगे 16 से, तो जब हम फिर क्वोशिएंट को डिवाइड करेंगे 16 से तो क्वोशिएंट 190 आएगा और रिमाइंडर क्या आएगा, 14 आएगा। तो 14 को हम क्या लिखते हैं, 14 को हम लिखते हैं E लिखते हैं, ठीक, E। फिर हम जब 190 को 16 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट 11 आएगा और रिमाइंडर आपका अगेन 14 आएगा। 14 को हम अगेन E ही लिखेंगे। उसके बाद जब हम 14 को, जब हम जो हमारा क्वोशिएंट आया 11 को फिर 16 से डिवाइड करेंगे तो ये B आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह से लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखा जाएगा, पहला रिमाइंडर है F, दूसरा रिमाइंडर है E, तीसरा रिमाइंडर भी E है और चौथा रिमाइंडर आपका B है। तो हम नीचे से ऊपर पढ़ेंगे तो हम लिखेंगे इसको B E E और F, जैसे ये आया है, ठीक है ना, BEEF। और याद रखिएगा यहाँ पे थोड़ा बताया नहीं है, लेकिन आप ज़रूर भूलिएगा मत, यहाँ पे ज़रूर आप 16 लिख दीजिएगा ताकि कंफ्यूजन किसी को ना हो, ओके। किसी को कोई प्रॉब्लम, तो अब आप डेसिमल को किसी भी नंबर में चेंज कर सकते हैं। डेसिमल को बाइनरी में चेंज कर सकते हैं, ऑक्टल में चेंज कर सकते हैं और हेक्साडेसिमल में चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ, वो आप करके 11:30 से आप स्टार्ट करिएगा और 11:40 तक हमको सबमिट कर दीजिएगा। 1 2 4 5 ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है, ये आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसको आप पहले बाइनरी में बदलेंगे, इसको आप पहले बाइनरी में बदलेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद उसको फिर आप ऑक्टल में बदलेंगे, ये भी क्वेश्चन मार्क है। और फिर इसी को आप हेक्साडेसिमल में भी बदलेंगे, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन ले लीजिए, 394। तो दो क्वेश्चन हमने आपको दिया, 1 2 4 5 को आपको बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में बदलना है और 394 को भी आपको बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में बदलना है। तो आप हमको दिखा दीजिए आज, और कल हम आपको दिखाएंगे कि बाइनरी को हम डेसिमल में कैसे बदलेंगे, ऑक्टल को हम डेसिमल में कैसे बदलेंगे और हेक्साडेसिमल को हम डेसिमल में कैसे बदलेंगे, ठीक है ना। मतलब जैसे हमने बाइनरी टू डेसिमल पढ़ा है, डेसिमल टू बाइनरी पढ़ा है, वैसे हम बाइनरी टू डेसिमल पढ़ेंगे, ऑक्टल टू डेसिमल पढ़ेंगे और उसके बाद हम बाइनरी टू ऑक्टल पढ़ेंगे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल पढ़ेंगे, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल पढ़ेंगे, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी पढ़ेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सब कन्वर्जन भी हम सीखेंगे धीरे धीरे, हाँ। तो आप ये एक्सरसाइज आज ही करके दिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।